پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہزادہ پرستان میں سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت سارے بونے اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ سب بہت دکھی لگ رہے تھے۔ کسی کے سر پر بونوں کی مخصوص لمبی اور ٹیڑھی ٹوپی نہیں تھی اور سب کے سر مکمل گنجے تھے۔ ان کے سر دور سے یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے چھلکے کے بغیر ابلے ہوئے انڈے ہوں۔ اس سارے مجمع میں ایک بونے نے دوسروں سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس سے شہزادے نے کہا، تم کون ہو اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شہزادے کی ہمدردی بھرے بول سن کر بونے کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے اور وہ کہنے لگا، ہم شمال میں رہنے والے بونے ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں۔ ہم آج کل ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں۔ شہزادے نے کہا، مجھے بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بونوں کا بادشاہ شہزادے کو بتانے لگا، آج صبح ہم سیر کے لیے نکلے تو جنگل میں ہمیں ایک جادوگر ملا جو شکل سے بہت نیک اور مہربان لگتا تھا۔ وہ ہمیں جنگل میں بنے ہوئے اپنے گھر میں لے گیا اور ڈبے سے ٹافیاں نکال کر کھانے کو دی۔ ہم سب نے ایک ایک ٹافی کھا لی اور اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن جیسے ہی ہم نے ٹافیاں کھائی، آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ شہزادے کے پوچھنے پر بونے بادشاہ نے بتایا، ہمارے سروں سے ایک ایک بال جھڑ کر زمین پر گر گیا اور ہمارے سر انڈوں کی طرح گنجے ہو گئے۔ یہ کہہ کر بونا بادشاہ زار و قطار رونے لگا اور اسے دیکھ کر دوسرے بونے بھی رونے لگے۔ انہوں نے اتنے آنسو بہائے کہ زمین پر پانی کا چھوٹا سا چوہڑ بن گیا۔ شہزادہ حیرانی سے پوچھنے لگا، لیکن کیا تم لوگوں نے جادوگر سے کہا نہیں کہ وہ تمہارے بال واپس کر دے؟ بونوں کا بادشاہ کہنے لگا، کیوں نہیں، ہم نے اس سے کہا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ بالوں کی واپسی کے لیے ہمیں اسے سونے کے 100 سکے دینے پڑیں گے۔ اسے کیا معلوم کہ میرے پاس تو 50 سکے بھی نہیں ہیں۔ آپ شہزادے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کے کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں، اور پھر پچھلے دنوں میں نے اپنے محل کی مرمت بھی کروائی تو اس میں کافی خرچ ہو گیا، اس لیے اب ہمیں ہر جگہ گنجے پن کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے۔ یہ بول کر بونا بادشاہ پھر سے رونے لگا۔ شہزادے نے بونوں سے کہا، فکر نہ کرو، میں تم سب کو اس مصیبت سے نجات دلاؤں گا۔ میں ابھی اس جادوگر کے پاس جاتا ہوں۔ یہ سن کر بونے بادشاہ نے شہزادے سے کہا، شہزادے، تمہیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ جادوگر بہت چالاک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی گنجا، گونگا یا بہرا نہ بنا دے۔ بونے بادشاہ کی بات سن کر شہزادے کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ شہزادے کا ایک راز تھا جس کے بارے میں بونوں کا بادشاہ نہیں جانتا تھا۔ وہ راز یہ تھا کہ شہزادے پر جادوگر کے کسی منتر کا اثر نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ 14ویں کی رات ایک بوڑھی جادوگرنی نے کئی پھولوں کی خوشبو اکٹھا کر کے شہزادے کے جسم پر مل دی تھی، جس کی وجہ سے جادو کا اثر شہزادے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ بونے نے جادوگر کی رہائش گاہ کا پتہ شہزادے کو دیا۔ شہزادہ وہاں پہنچ گیا اور جادوگر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جادوگر نے شہزادے کو دیکھا تو بڑی چالاکی سے مسکرا کر کہنے لگا،
खुश आमदीद, खुश आमदीद। शहजादे ने भी खुश दिली से जवाब दिया और कहा, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो जंगल की खुली और साफ हवा में रहते हैं। जादूगर फखरिया अंदाज से बोला, हाँ, क्यों नहीं? क्या आप मेरा घर अंदर से देखना पसंद करेंगे? मेरे पास इस घर में कई ऐसी हैरत अंगेज चीजें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। शहजादे ने ये सुनकर जादूगर का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। जादूगर ने शहजादे को एक कुर्सी पर बिठा दिया और एक अलमारी के पास गया और उसे खोला। उसने अलमारी से टॉफ़ियों का डब्बा निकाला और उसे शहजादे के पास ले आया और कहने लगा, ये टॉफी लीजिए, ये बहुत मजेदार हैं। मैंने उन्हें एक बूढ़ी जादूगरनी से खरीदा था। आप यकीनन इन्हें चख कर लुत्फ अंदोज होंगे। शहजादे को मालूम था कि ये वही टॉफ़ियाँ हैं जो इसने बोनो को खिलाई थी। फिर भी शुक्रिया के साथ एक टॉफ़ी मुंह में डाली और उसे चबाने लगा। टॉफ़ी वाकई बहुत लजीज थी। जादूगर उसे टॉफ़ी खाते हुए बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि शहजादे के बाल झड़ने शुरू नहीं हुए तो वो बहुत हैरान हुआ। फिर शहजादा कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और खुशी से झूठ मूठ तालियां बजाकर कहने लगा, मुझे उन चीजों का भी इल्म हो रहा है जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं सितारों का इल्म जानने लगा हूँ। मुझे घास की तितलियों के बढ़ने की सरसराहट भी सुनाई दे रही है। मुझे दुनिया की सब जबानों पर अबूर हासिल हो गया है। जादूगर ने हैरानी से चीखते हुए पूछा, क्या वाकई? मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत टॉफी दे दी है। उधर शहजादे ने नाचते हुए शोर मचा रखा था और बोल रहा था कि मुझे और टॉफ़ियाँ खाने को दो। फिर उसने डब्बे से 4-5 और टॉफ़ियाँ निकाल ली और मुंह में डालकर उन्हें मज़े से चबाने लगा। वो फिर कमरे में इधर उधर मज़े से उछलने कूदने लगा। जादूगर हैरत से चिल्ला कर बोला, क्या तुम्हें वाकई इन सब चीजों का इल्म हो गया है? लेकिन अब मैं तुम्हें मजीद टॉफियां नहीं दूंगा, बल्कि बाकी टॉफियां मैं खुद खाऊंगा। मैं तुम्हें मजीद फायदा नहीं लेने दूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी फायदेमंद टॉफियां हैं। मेरा ख्याल है डब्बे में पड़ी ऊपर वाली टॉफियां मुख्तलिफ थी, क्योंकि वो तो लोगों को गंजा कर देती थी। फिर उसने लालच में आकर टॉफ़ियों से मुंह भर लिया और उन्हें ज़ोर ज़ोर से चबाने लगा। फिर उन्हें खाने के बाद वो जादू के असर होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन फिर हुआ ये कि उसके सर से कुछ झड़ कर नीचे फर्श पर गिरने लगा। जी हाँ, आप सही समझे, वो जादूगर के सर के बाल थे जो गच्छों की सूरत में झड़कर फर्श पर गिर रहे थे। जादूगर चिल्लाकर कहने लगा, ओहो, मैंने भी गलत टॉफियां खा ली हैं। मैं तो बोनों की तरह गंजा हो रहा हूँ। ओह, मैं शाम में चाय के बाद सैर के लिए कैसे जाऊंगा? मुझे अभी कोई मंत्र ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरे बाल वापस आ जाएं। शहजादे ने ऐसा चेहरा बनाया हुआ था कि जैसे उसे जादूगर के गंजा होने का बहुत अफसोस हो। उसने जादूगर की मदद शुरू कर दी ताकि वो किसी किताब से वो मंत्र मिल जाए जिससे उसके बाल वापस आ जाएं। फिर एक किताब में मंत्र पढ़कर जादूगर कांपती हुई आवाज़ में बोला, मुझे शहद, शबनम के कतरों, एक गुल मकई के फूल की खुशबू, एक बोतल चांदी के पानी को उल्लू के पर से मिलाकर एक मिक्सचर बनाना पड़ेगा। सब चीज़ें मिल गई तो उसने सबको बोतल में डालकर उन्हें अच्छी तरह मिक्स किया। फिर उसने शहजादे से कहा,
अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे सारे बाल वापस आ जाएंगे। मुझे घुटनों के बल बैठना होगा और आंखें बंद करके 99 तक गिनना होगा। जब गिन चुकूं तो ये मिक्सचर मेरे सर पर उंडेल देना, जिससे मेरे सर पर पहले की तरह बाल उग जाएंगे। शहजादे ने उसके हाथ से बोतल ले ली और इंतज़ार करने लगा कि कब वो आंखें बंद करके गिनती गिनना शुरू करे। जैसे ही जादूगर ने आंखें बंद की, वो बोतल लेकर बोनो की तरफ भागा और उनके पास पहुंचकर उनसे कहने लगा, जल्दी करो, जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर लो और 99 तक गिनो। फिर मैं तुम्हारे सरों पर ये मिक्सचर डाल दूंगा। आंख झपकते ही सारे बोने शहजादे का कहना मान गए और आंखें बंद करके बैठ गए और गिनती गिनने लगे। गिनने के बाद शहजादे ने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर सबके गंजे सरों पर उंडेल दिया और देखते ही देखते सारे बोनों के सरों पर बाल आ गए। बोने बहुत खुश थे। वो शहजादे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और उससे दरख्वास्त करने लगे कि वो उनके साथ उनके बादशाह के महल में चले। लेकिन तभी जंगल से ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे कोई बिखरा हुआ जंगली बैल दौड़ता हुआ आ रहा हो। फिर उन्हें जादूगर दिखाई दिया। गुस्से के मारे उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वो चिल्लाकर बोला, झूठे शहजादे, तुम मेरा मिक्सचर लेकर भाग गए हो। मैं आंखें बंद किए तुम्हारा इंतजार करता रहा। तुम मेरे सर पर उंडेलो, लेकिन तुमने सारा मिक्सचर इन बोनों के सरों पर उंडेल दिया है। शहजादा हंसा और बोला, मैं नहीं, तुम झूठे हो। तुमने लालच में आकर बोनों को गंजा कर दिया और मैंने इन्हें दोबारा ठीक कर दिया। ये लो बोतल, शायद इसमें से चंद कतरे निकल आए। शहजादे ने बोतल फेंकी, जिसे जादूगर ने फौरन दबोच लिया। उसे बोतल से उस मिक्सचर के सिर्फ 2 कतरे मिले, जो उसने अपने गंजे सर पर मल लिए। लेकिन उसके सर पर सिर्फ 4 बाल उगे, जो उसके गंजे सर पर बड़े मुज़हक़ख़ेज़ दिखाई दे रहे थे।